Hello students, I hope you all are doing well. So in the previous video what you have learned, it's all about like the defining features or the properties of the living things. But now in this video you will gonna learn about the taxonomy of the living things. And one thing, जब आप ये वीडियो देखोगे, after that you don't have any need to rectification of the taxonomy. You will gonna understand it. Okay? सिर्फ एक ही फंडा है लाइफ में, अगर आपको कुछ सीखना है तो उसको रट्टा मत मारो, उसको समझने की, उसको सीखने की कोशिश करो. ठीक है. सो इन दैट वीडियो यू विल गोना अंडरस्टैंड each and every concept of the taxonomy. So, hi students, once again, my name is Shishta Sharma and I'm from CPJ Academy. So, let's start our lecture. So, yes, आपको taxonomy जानने से पहले there is like 2 or 3 terms that you must know, like biodiversity and systematics. So, let's start this thing by that one, like biodiversity. सी अगर आप इन टर्म्स को तोड़ते हो और यू कैन लाइक ब्रेक करो इन टर्म्स को, लाइक बायो, as you can see in that video, like in that ppt, like bio and diversity. Let me take the color so it will gonna make you easier. see see this is diversity and this thing is bio. Bio means again the living things and diversity means variety. Okay, so you can say that there are variety of organisms present on earth, as you know. ठीक है ना. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स में भी बहुत सी वैरायटी है. ठीक है, कैट, डॉग एंड ऑल दैट. ह्यूमंस. ओके, प्लांट्स भी बहुत सारी वैरायटी के. सो इन नटशेल यू कैन से दैट देयर आर लाइक वैरायटी ऑफ, लेट मी यूज दिस. So yes, there is a variety of organisms present on the earth and that thing is known as biodiversity. Can you imagine? Like अगर मैं अभी आपको बताऊँ नटशेल में, सो लाइक 1.7 से या 1.8 मिलियन टोटल जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है राइट नाउ एग्जिस्ट करते हैं. एंड आउट ऑफ विच 1.25 millions are animals while 0.5 millions are plants. So that is the introduction for the biodiversity. So can you imagine now? So that question may come in your exams, like how many millions or how many living organisms exist on earth. See, that is entirely based on the NCERT book. Okay, so in your NCERT 1.7 to 1.8 millions is given. So if in your exam that question comes, so you have to give the answer. Yes, the answer is 1.7 to 1.8 million. And among which अगर आपको एनिमल्स का अलग से डेटा पूछा जाए, so you have to tell the answer is 1.25 millions. Or in case of plants, you have to say the answer is 0.5 millions. See, as in that picture, you can have a look what actually a biodiversity looks like. See, as you can see in that picture. So this is like a biodiversity. Okay. Now the thing comes systematics. See, आपको इस नाम से ही क्लियर हो रही होगी चीज कि सिस्टमैटिक क्या है. See, let's क्लियर दैट पजल. आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं. एक तो है कि आपकी ऐसे रैंडमली कुछ भी पड़ा हुआ है, तो इट विल गिव टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम. लाइक इफ यू वांट टू गो इन अ पार्टी, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, बिकॉज आपकी पूरी अलमारी बिखरी पड़ी है. बट व्हाट इफ अगर आप उसको अपनी ही कबर्ड में सेक्शन वाइज मैनेज कर दे, लाइक दिस सेक्शन बिलोंग्स टू कि जो मुझे पार्टी में डाल के जाने कपड़े, एंड दिस सेक्शन बिलोंग्स जो मुझे स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के जानी है आपको. ठीक है, तो अगर आप उनको सेक्शन वाइज डिवाइस कर दोगे, लाइक उनको अरेंज कर दोगे एक सिस्टमैटिक वे में, सो दैट विल गोना मेक यू इजियर फॉर यू. ओके, दैट विल गोना मेक इजियर फॉर यू. सो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं, यस हाँ मुझे ये यहाँ पहनना है और ये वहाँ पहनना है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा. सो सेम दैट वे सिस्टमैटिक मीन्स इट्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली इन the like living world chapter we are talking about the organism or about the living things. So yes. Okay, so systematic means it's a arrangement of organisms. Now the question is how will you gonna organize these organisms. So these organisms are like you can organize those organisms on the basis of 3 properties. First one we are having is identification. Okay, first one we are having is identification. Second is nomenclature and third is classification. I will cover this point in my upcoming slide, but before that this term needs to be clear to you, because in like
एक नंबर के क्वेश्चन में यू मे गेट दैट क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक एंड हाउ यू विल arrange the organisms. Okay, so the organism will be going to arrange on that. So yes, as I told you in the previous slide, that it's identification, classification and nomenclature. So first of all talk about the identification. See identification, अब मैं इसको और भी क्लियर करती हूँ आपके लिए. क्या होता है जब घर में कोई भी अगर मान लो डिलीवरी हुई, बेबी हुआ है, तो डॉक्टर क्या बताएगा, पहले तो वो ये चेक करेगा कि वो लड़का है या वो लड़की है. ठीक है, तो मेल है या फीमेल है, सबसे पहले वो यही चेक करता है. सो सेम आइडेंटिफिकेशन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम एंड द पोजीशन. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि हम उसे मेल कैटेगरी में रखेंगे या फीमेल कैटेगरी में रखेंगे. दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे लाइक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है. सो वी विल गोना चेक कि इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, हमें इसे किस पोजीशन में रखना है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट this identification is done with the help of key. Now here the question is, what do you mean by key? So what is key? See, key it's an analytical in nature. ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इवन इन नीट एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो की है आपकी वो एनालिटिकल होती है या फिर नॉन एनालिटिकल होती है. ओके, सो ये जो की है आपकी एनालिटिकल होती है नेचर. दैट मीन्स ये एनालिसिस करते हैं हम इसमें. Okay, we have to identify the organism based on certain similarities or the dissimilarities of particular organism. So that key is like हर किसी बोलते हैं ना, हर दरवाजे की की अलग होती है, सेम नहीं होती. तो ऐसे ही हर पर्टिकुलर टेक्सोन के लिए एक पर्टिकुलर की होती है. ओके, नाउ हाउ यू विल यूज दैट की, ओके, फॉर टू नो कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं. Okay, if you see a key, so basically it consists of that key uses a pair of contrasting characters known as couplet. ठीक है, so ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, what do you mean by couplet? So couplet it is a pair of contrasting characters. Say like if I clear you this thing, see if I am saying that like in Punnett school you must have read about the Mendel's law and all that. So see, this is showing that something is tall in nature but having two alleles, like this T represent the tallest one and while or the dominant one, and this T represent the recessive one or dwarf in nature. Okay, these are two contrasting character of a single gene, you can say. Okay, contrasting characters है but a single gene के ही है. So that is a kind of couplet. अगर मैं इनमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर T की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिर्फ टी की ही बात करूँ, पर्टिकुलर लाइक इस टी में से पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को ही लेके चल रही हूँ, इस कपलेट में से सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो मैंने लिया दैट इज नॉन एज लीड. ओके, सो द ईच कैरेक्टर ऑफ कपलेट is termed as lead. Okay, so now I think this is clear to you that what do you mean by couplet and lead. Couplet is the contrasting characters while lead is the character of couplet. That means individual or the single character of a couplet, that is lead. Now again, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डोर को खोल कर ओपन करने के लिए आपके लिए एक पर्टिकुलर आपके पास एक की होनी चाहिए. सो सेम कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेक्सोन में देखना है, वी विल डेफिनेटली गोना कवर दैट व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोन in the upcoming slide. Okay, it's a ranking and all, we'll definitely gonna cover that. It means grouping of identified organism into categories or taxa. Okay, like if I am saying you that I give you a basket जिसके अंदर vegetables भी है और fruits भी है, and I give you further like 10 to 12 baskets more, और मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम ये मुझे सब कुछ अलग करके दे दो. आई जस्ट टोल्ड यू कि मुझे सब कुछ सेपरेट करके दो, सब कुछ अलग करके दो. तो आप क्या करोगे कि जो आपको लग रहा होगा कि जो फ्रूट्स है आप उसको एक बास्केट में डाल दोगे और दूसरे बास्केट में आप क्या डाल दोगे, वेजिटेबल्स को डाल दोगे. क्लियर? सो इट्स लाइक ग्रुपिंग दैट विल बी बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और द डिससिमिलैरिटीज. ठीक है, इट्स अ वेरी लो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाट इफ आई एम गिविंग यू ओनली फ्रूट्स, ठीक है, और मैं अब उस फ्रूट्स में भी क्या होगी, सिर्फ एक टाइप के तो है ही नहीं फ्रूट, वी हैव वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वी हैव ग्रेप्स, बनाना और समथिंग लाइक दैट. तो अब अगर मैं अब आपको फिर से सेपरेट करने के लिए कहूँ तो आप क्या करोगे कि एक बास्केट में सारे आप एप्पल सेपरेट कर दोगे, दूसरे बास्केट में आप
बनाना या फिर जो जो भी फ्रूट्स है। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको की हेल्प लेनी थी, एंड फॉर क्लासिफिकेशन जो आपको इजीली जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसके बेस पे, ठीक है, आपको पता है ना एप्पल कैसा दिखता है और ऑरेंज कैसा दिखता है, तो आप उसी के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उनको सेपरेट आउट कर दोगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। थर्ड इज नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्या है, it's like you have to provide a different name or the proper name to organisms. like अगर मैं अब आपकी बात करूं, अगर आपका नाम ही नहीं होता तो आपको क्या बुला रहे होते, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। तो फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन यू मस्ट हैव अ नेम। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन इजिली रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर्स ऑर्गेनिजम्स। सी नाउ वी हैव 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब क्या है कि नॉमेनक्लेचर हमें नामकरण तो करना है, घर में तो क्या होता है, बड़े बुजुर्ग आए उन्होंने नामकरण कर दिया। सो इन दैट सेम केस हमें यहाँ पर भी, अब प्लांट्स हैं तो हम उनको प्लांट्स वाली जगह पे भेज देंगे कि हाँ जी इनका नामकरण कर दीजिए, इनका नॉमेनक्लेचर कीजिए, ठीक है। सो सेम like on that basis we are having basically 5 codes of nomenclature. Like in that first case you can have a look, ICBN. Here this I stands for international, this C stands for code of botanical nomenclature. Botanical, that means it is entirely or completely connected to the plants only. Okay, if you want to give a name for a particular like animal, so you will go for the zoological department, or okay, for that we are having this ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Again we are having like ICVN. Here this V stands for viral. If you want to give a name for a particular virus, so this organization is there where you can say yes, this is a new virus and you have to give the certain name to that particular variety of the virus. Okay, same as you can see ICNB over there. Okay, so ICNB को अगर आपको like it's all completely related to bacteriological nomenclature. So for virus department you have to go to the ICBN, while for bacteriological department you have to go ICNB. Okay, same if you want to give a name for a particular cultivated plant, so इसके लिए एक अलग से organization है, that is ICNCP. तो जितनी भी आपको you know ये फुल फॉर्म है, जो भी एक्सपेंडेबल फॉर्म है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज आपके ये जो फॉर्म्स है एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पक्का कन्फर्मली आता है, ठीक है। वैसे मेरा मेन मकसद आपको मार्क्स दिलाना नहीं है, बट माई मेन मोटिव और माई मेन यू नो एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट, कि आपको रट्टा नहीं मारना कि बी किसके लिए है और एन किसके लिए, बट इट्स जस्ट टू मेक यू इजी। सो यस, now our topic will start, like taxonomy. So what do you mean by taxonomy? See, if you are talking about the taxonomy, let's write there. See, taxonomy, it's like principles. I will definitely write these words in a you know letters only. Principles or procedures. Okay, why you need these principles and procedures? To classify something. इन नटशेल यू कैन से टैक्सोनॉमी में आपको करना क्या है कि आपको क्लासिफिकेशन करनी है लिविंग थिंग्स की बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, नाउ व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स? अगेन दिस इज सेम like identification, you have to identify the thing, you have to nomenclature that particular organism, and finally and finally you have to classify that thing. तो अगर आप टेक्सोनॉमी को देखते हो, सो इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, मतलब टेक्सोनॉमी की भी मतलब फर्दर जो है ये 3 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकेंड वन वी आर हैविंग इज बीटा, एंड थर्ड वन वी आर हैविंग इज ओमेगा। ड्राइंग इज टू बैड ना, बट स्टिल सी टेक्सोनॉमी अल्फा जो टेक्सोनॉमी है ये एंटायरली कनेक्टेड है और लिंक्ड है प्रॉपर आपसे आपके morphological character से। okay, let me use this. Okay, it is entirely connected to the morphological characters, this alpha. If I am talking about the beta one,
So this beta is connected to the genetic. That means if you want to give, or if you want to classify on the basis of the genetic characters, okay? So then in that case you will gonna use beta taxonomy. Genetic characters, anatomy and physiology. Okay, so in beta these three category comes, like genetic, anatomy, like वो outer appearance तो आपकी morphological होगी, ठीक है. anatomy मतलब वो अंदर से कैसा है, physiology proper उसका अंदर का structure and all that, like growth hormones and all, सब कुछ उसमें involve हो जाएगा. And if we are talking about the last one, that is omega taxonomy, so in that we used to have phylogenetic relationship. Now what is this phylogenetic? Phylogenetic मतलब कि वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि वो लाइक आज के टाइम में जो सी भी आप स्पीशीज लेके चल रहे हो, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आपने क्लासीफाई करना है, यू हैव टू चेक इट आउट कि प्रीवियस जो भी उसके एंसेस्टर्स हैं उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है. तो फाइलोजेनेटिक के लिए हम ओमेगा टेक्सोनॉमी यूज करते हैं. फॉर जेनेटिक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी यूज बीटा टेक्सोनॉमी, एंड फॉर द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस द टेक्सोनॉमी इज अल्फा taxonomy. See, if you see the branches of taxonomy, so it can be of basically 8 types, as you can see. First one is classical taxonomy. The another name for this classical taxonomy is alpha taxonomy. Again, alpha involves morphological traits. Oh, okay, so systematic is based on the morphological traits. Second one we are having is artificial taxonomy. It makes the use of हैबिट एंड हैबिटेट. मतलब हम आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो चीज जो भी ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर, वो रहता कहाँ पर है, उसकी हैबिट क्या है, वो पॉलर रीजन में रहने वाला है या थोड़ा लाइक गर्म जगह पे रहने वाला है, ठीक है. उसके बेसिस पे वी विल गोना check it out, or we will gonna classify that particular organism that will be termed as artificial taxonomy. Like जो प्लिनी था उसने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी. ओके, थर्ड वन अगेन फाइलोजेनेटिक, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओमेगा टेक्सोनोमी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. सो इट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ स्पीशीज. ओके, देन fourth one we are having is experimental taxonomy. Experimental, see, it is entirely based on the experimental determination of genetic interrelationship. कि जेनेटिक तौर पे कैसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो रिलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. देन देयर इज कीमो टेक्सोनॉमी. ओके, कीमो दैट मीन्स नाम से ही क्लियर है कि कुछ केमिकल्स की बात होगी, कि टिश्यू में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेस पे हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं. जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उसके बेसिस पे, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ केमिकल्स इन सेल्स और टिश्यूज. देन देयर इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी दैट इज एंटायरली और कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर है जो सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है, उसके जो वो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. Again, then there is a cyto. See, whenever you see this prefix cyto, so that is like chromosomes and all that. Cell होता है वैसे basically cyto का मतलब like cytology, study of cell is cytology. So cytotaxonomy obviously cell के अंदर chromosomes है, सब कुछ है. So cytotaxonomy is based on comparative study of chromosome. Okay. Then karyo, जहाँ पर भी karyo आपको suffix prefix दिखेगा, it is connected to the nucleus. ओके, सो कैरियोटेक्सोनॉमी में ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस की बात करें, वहाँ क्रोमोसोम्स भी होंगे, आपका न्यूक्लियस तो है ही, ठीक है. सो जो कैरियोटेक्सोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडीज. ओके, सो कैरियोटेक्सोनॉमी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल और न्यूक्लियर स्टडीज. सी, अभी तक आपने ये देखा कि टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस क्या है. नाउ द क्वेश्चन इज बेसिकली हम टेक्सोनॉमी में कर क्या रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं लिविंग थिंग्स को, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, बट ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कौन लाया, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो लेके आए दैट वाज कैरलस लिनियस. ओके, ही वाज अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट जो नेचर को स्टडी करते हैं. ओके, so he devised a two-part naming system named as binomial nomenclature.
सी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायनॉमियल ही नॉमेनक्लेचर ही है, वी हैव ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सो यस वी हैव ट्राइनॉमियल और पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर टू। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप ये बोलो कि जो आज के टाइम में भी यूज हो रहा है, दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और ये जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, दैट वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट। ओके, सी फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आ रही होगी कि यार हमें इनको अलग से नाम देने की रिक्वायरमेंट क्या थी, है ना। ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है या ट्राई है या फिर पॉली है, नीड क्या थी, एक सिंपल सा नाम चलने देते, क्यों इतना हेडेक लिया, क्यों साइंटिफिक नेम देने की जरूरत थी। सी अगर मैं बात करूं, अगर मैं लोकल बोलूं कि लाइक घिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज बोल रही है, या एक एप्पल ही ले लो आप, इंग्लिश में आप उसे एप्पल बोल रहे हो, हिंदी में आप सेब बोल रहे हो, दूसरी लैंग्वेज में लोग उसे कुछ और भी बोलते होंगे। ठीक है, तो लोकली बहुत अलग अलग से नाम है ना, विच मेक्स लाइक अगर मैं कहीं दूसरी जगह पे गई और मुझसे उन्होंने पूछा दैट डू यू वांना ईट दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे वो दिखा दोगे तो समझ में आ जाएगा, बट मुझे सुनने में नहीं आएगा समझ में, क्योंकि लैंग्वेज अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि लोकल लैंग्वेज अलग होती है ना। तो इस चीज को इजी बनाने के लिए ही कि भाई लोकल नाम तो रहने दो जो है, ठीक है, जो उसका कॉमन नेम है वो तो रहने दो, बट एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ आपको वो सेम नाम ही मिलेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो उस चीज को हटाने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, जो आपका ये साइंटिफिक नेम था वो दिया गया। नाउ जस्ट टॉक अबाउट द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। See, it's a standard two-part system. Let me change that. 1 second. Yes. So it's a standard two-part system. Binomial. See, as the name suggests, bi means two. Nomial means अगर आप भी जो भी नाम डिवाइस कर रहे हैं वो उसमें दो सिस्टम रहेंगे फॉर द नेमिंग थिंग्स। और जो भी आप साइंटिफिक नेम देते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक फर्स्ट वन थिंग तो ये होती है कि जो फर्स्ट लेटर होता है, जो भी आप नाम दे रहे हो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, दैट मस्ट बी ना कैपिटल लेटर्स और दैट मस्ट बी ऑफ अपर केस। ठीक है, एंड दैट विल गोना ऑलवेज रिप्रेजेंट जीनस। ठीक है, और जो आप उसके बाद जो सेकंड वर्ड लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट मस्ट बी ऑफ लोअर केस एंड दैट विल रिप्रेजेंट स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट, यू कैन से दैट। Okay, so yes, I will gonna tell you. See, so in this system, the first word identifies the genus. Okay, first word क्या बताएगा? Genus. So in your exam, you may get that question कि जो first word होता है वो क्या identify करता है? वो identify करता है genus. ठीक है? Then a genus consists of a group of similar species. I will gonna tell you each and everything about what is genus, species, and what are the categories and all in the upcoming slide. But before that, uh, just look this binomial nomenclature. सो द सेकेंड वर्ड, जो सेकेंड वर्ड है आपका वो क्या बताएगा? स्पेसिफिक एपिथेट और यू कैन से स्पीशीज को बताएगा। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट ऑलवेज इन लाइक लोअर केस। दो रूल्स है, या तो आप उसको इटैलिक फॉर्म में लिखो, अगर आप इटैलिक लैंग्वेज में नहीं लिख रहे तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अभी एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी। सो लाइक जो ये हमारा कैलस लिनस था, इसने डिस्क्राइब किए हैं मोर देन 6,000 एनिमल्स को एंड मोर देन 4,000 प्लांट्स को यूजिंग लैटिन। ये लैटिन जो है ये लैंग्वेज चेंज नहीं होने वाली, दैट्स व्हाई उसने इसमें कर दिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। साइंटिफिक नेम्स डज नॉट रिप्लेस, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, बट इंस्टेड फर्दर डिफाइंस कॉमन नेम। आप कॉमन नेम लिख सकते हो ब्रैकेट में, बट यू हैव टू टेल द साइंटिफिक नेम ऑफ any particular plants or animals that you are using. Now here the question come कि लैटिन लैंग्वेज का ही यूज क्यों किया? सी लैटिन लैंग्वेज हम नॉर्मली बोलचाल में तो यूज करते नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसका वो कभी चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, जो बोलचाल वाली भाषा होती है ना, आप कुछ भी बोल देते, जैसे अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ आपको, लाइक नॉर्मल जो हमारी टॉक चल रही है, जो बात चल रही है, उसमें मैं आपको कुछ भी वर्ड हिंदी का कुछ भी मैं कुछ बोलूंगी, आप कुछ बोल दोगे। ठीक है, तो लोकल में लैंग्वेज का मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग वही रहता है बट वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, सो जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उनको लगा कि यार लैटिन लैंग्वेज तो नॉर्मल लैंग्वेज है नहीं, मतलब वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने लैटिन लैंग्वेज को यूज किया। देन साइंटिफिक नेम्स जो है मैंने अभी आपको बताया कि दैट मस्ट बी, कि वो जो है आपका इटैलिक फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर इटैलिक फॉर्म में नहीं है सो यू हैव टू अंडरलाइन दैट। ओके,
First letter of the genus name is uppercase, as I told you before, and the first letter of the specific epithet is always of lowercase. Okay, like as you can see this homo sapiens, अगर आप ये जो है आपका like for humans we use this scientific name, for humans we say that homo sapiens. ठीक है, तो अगर आप homo sapiens की बात करते हैं, अगर आप इटैलिक में लिखिए या फिर इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. और यू कैन सी दिस फर्स्ट, जो ये आपका फर्स्ट वर्ड है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को. Okay, so it is representing species while it represents genus. Now as you can see here the first letter जो है आपका अपर केस है और इधर आपका जो फर्स्ट लेटर है वो लोअर केस है. सी, अब आपको पता लग चुका है कि टेक्सोनॉमी ये है, और टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड ऑल्सो यू नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट हु क्लासिफाइड दैट taxonomy, and after that how living things are classified, how you will gonna classify the things. Okay, so in any classification system, as you can see in that, okay, in any classification system items are categorized. That means आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे. क्यों करोगे? ताकि आपको इजीली डिस्कस कर सको आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को. ठीक है, although biologists group organisms they subdivide the groups on the basis of more specific criteria. ठीक है, पहले वो एक कैटेगरी में करेंगे फिर उसको वो सब डिवाइड भी करते हैं. आई विल गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन अपकमिंग स्लाइड. ओके, देन देयर विल बी अ टर्म बिफोर दैट, just study about the taxonomic hierarchy, which will then make you easier to learn that what is taxon, okay, what is lead and couple. It is always clear to you, also clear to you. So yes, let's talk about taxonomic hierarchy. So the taxonomy hierarchy will be covered in next part. If you like the video, please subscribe the channel and don't forget to press bell icon for more updates. Stay tuned.